एक्सक्यूज मी मैम। जी जी। मैम आप रिकॉर्डिंग्स कब सीटीज पे अपलोड करेंगी? बच्चे ये हो जाएंगी, आप फिक्र ना करें। आप क्लास में तो सुनते कुछ नहीं है, और रिकॉर्डिंग्स के लिए यू आर डाइंग टू गेट दैट। क्लास में आपके रिस्पॉन्सेज आपने देखे हैं कि मैं बोलती हूँ एंड नो बॉडी रिस्पॉन्स बैक बैक टू मी। इज इट अ गुड आइडिया? शुड यू बी बिहेविंग लाइक दैट? नो मैम। तो अपना कंट्रीब्यूशन और अपना बिहेवियर भी आप लोग थोड़ा सा गौर से देखें ना, कि व्हाट यू आर गिविंग अस, व्हाट काइंड ऑफ मोटिवेशन यू आर गिविंग टू अस। Anyway, this is my duty, so I have to start with the lecture now because time भी short है. We can talk about these things later on कि आपको कैसे respond करना चाहिए और हमें कैसे respond करना चाहिए. What we were discussing were the lipoproteins and the metabolism of lipoproteins in the body. And as I have repeatedly focused on this metabolic pathway, that how liver is utilizing the fats and how liver is transporting the fats to different parts of the body. And there should be no confusion now that how the LDL is formed. And this LDL has three different pathways where it can be utilized. Either it goes into the extrahepatic tissues and it provides cholesterol to different cells for the maintenance of the cellular membranes and for the steroidal hormones production and many other places where cholesterol is needed. Or otherwise, it goes back to the liver. And the third possible option for the LDL is that it stays into the uh, blood vessels beds, where, like for example, here it is written, it is important to note that 25 to 30% of LDL crosses the endothelium and present in subendothelial space for of the blood vessel walls. And in normal physiological conditions, when there is the higher need of the cholesterol or the demand for the cholesterol is increased, this LDL comes back into the circulation and is transported to those cells where it is needed. However, this phenomena also causes a risk for the human body, because when it crosses the blood vessel endothelium and goes into the subendothelial space, and we are talking about the arteries, because there we have oxygenated blood, there are chances that this LDL will be oxidized because there is higher amount of oxygen in the blood vessels, and that oxygen interact with this LDL, and the LDL gets oxidized. When the LDL gets oxidized, there are different types of problems which can be initiated. We will be talking about them shortly. ये जो related health problems यहाँ पर लिखे हुए हैं, these are related to the fats. और इसमें सबसे ऊपर जो है वो atherosclerosis लिखा हुआ है. Atherosclerosis is a specific process. वो भी हम आगे shortly जो है उसके ऊपर बात करेंगे कि what is the phenomena, how it develops and how it can create different kinds of problems. अगर atherosclerosis जो है वो हार्ट की वेसल्स के अंदर डेवलप होगा, तो इट विल बी नोन एज coronary heart disease. And if it is developed in the brain vessels, it will be known as it can end up on stroke. Similarly, there could be possibility of peripheral artery disease and some kidney problems. Higher fat intake can also lead to different types of cancers, for example, breast cancer and prostate cancer. That's why it is very important that when you are consuming your daily energies, how much of the saturated fat or the fat in total should be coming from the food sources. So atherosclerosis is a syndrome affecting the atrial blood vessel. अब वो वाला जो फिनोमिना है कि एलडीएल जो है वो ब्लड वेसल्स के अंदर की एंडोथेलियम सब एंडोथेलियल स्पेस में जाकर रेस्ट करता है, उस फिनोमिने को आपने माइंड में रखना है, बिकॉज दिस एथेरोस्क्लेरोसिस प्रोसेस डेवलप्स ड्यू टू दैट फिनोमिना. It is a chronic inflammatory response in the walls of the arteries, large part due to the accumulation of the macrophages, white blood cells, and promoted by the LDL without adequate removal of the fats and cholesterol from the macrophages by functional HDL. It is commonly referred to as a hardening or furring of the arteries. It is caused by the formation of the multiple
within the arteries. Actually, what happens is that when LDL is oxidized in the subendothelial space of the blood vessel, your immune system is activated, and the white blood cells and macrophages are transported to that space, and they are trying to engulf those LDL and detoxify them and clear that space. But somehow the macrophages do not have the ability to completely detoxify the LDL. होता क्या है कि उसकी रिटर्न में ये होता है कि मैक्रोफेज जो है वो खुद भी ब्रस्ट हो जाता है, और एलडीएल जो ऑक्सीडाइज हुआ उसका जो मटेरियल है वो भी वहां पर होगा, और ऊपर से मैक्रोफेजेस जो हैं वो भी वहां पे ब्रस्ट हो जाते हैं, और जो डैमेज है वो इंक्रीज हो जाता है, और उस डैमेज को बॉडी जो है वो सेंस करती है, एंड इट ट्राइज टू रिक्रूट मोर इम्यून सेल्स ओवर देयर एंड मोर वाइट ब्लड सेल्स. सो द डैमेज कीप्स ऑन इंक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग. अब वहां पर हमारा जो HDL है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, बेसिकली इसका जो रोल है, इट इज दैट इट गोज ओवर देयर एंड इट रिमूव्स द कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम देयर, एंड इट ट्राइज टू हील अप दैट सिचुएशन. और अगर वो हीलिंग हो जाएगी तो ब्लड वेसल जो है वो नॉर्मल अपना काम करती रहेगी. But if that is not happening to that extent, or otherwise either if you have dyslipidemia, जैसे कि हमने पहले बात की थी कि लाइफस्टाइल और आपका जो जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है और आपका जो डाइटरी पैटर्न है, वो सारी चीजें इस बात को डिटरमिन करती हैं कि हाउ मच ऑफ द लिपिड्स, सर्कुलेटिंग लिपिड्स विल बी इन योर ब्लड वेसल्स. और अगर आपके जिस्म के अंदर ज्यादा LDL सर्कुलेट कर रहे होंगे तो ज्यादा चांसेस होंगे ऑक्सीडाइज होने के, और ज्यादा चांसेस होंगे इस डैमेज को बढ़ाने के. Atherosclerosis develops from the low density lipoproteins becoming oxidized by the free radicals, particularly oxygen radicals. Blood in arteries contain plenty of oxygen, so atherosclerosis develops in the arteries and rarely develops in the veins. When oxidized LDL comes in contact with the artery wall, a series of reactions occurs to repair the damage to the artery wall caused by the oxidized LDL. जब oxidized LDL वो damage create करता है, जैसे मैंने आपको पिछली स्लाइड पर बताया है कि बॉडी जो है वो अपने इम्यून सेल्स वहां पर रिक्रूट करती है, और बॉडी ऑटोमेटिकली ट्राई करती है टू हील अप दैट डैमेज. But unfortunately, the damage keeps on increasing because if you have all those predispositions, for example, genetic problems, lifestyle, caffeine intake, smoking, and these sedentary habits, तो ये सारी चीजें इस डैमेज को प्रमोट करती हैं. The body's immune system responds to the damage of the artery wall caused by the oxidized LDL by sending specialized white blood cells, macrophages, and T lymphocytes to absorb those oxidized LDL. Unfortunately, these white blood cells are not able to process the oxidized LDL and ultimately grow and then rupture, depositing a greater amount of the oxidized cholesterol into the artery wall. This triggers more white blood cells, continuing to the cycle. अब इस तरह से ये जो प्रोसेस कंटिन्यू होता है तो ये आर्टरी को और ज्यादा इन्फ्लेम कर देता है. इवेंचुअली द आर्टरी बिकम्स मोर इन्फ्लेम्ड. The cholesterol plaques cause the muscle cells to enlarge and form a hard cover over the affected area. This hard cover is what causing a narrowing of the artery, reduces the blood flow and also increases the blood pressure. Naturally जहाँ पर reduction होगी space की और एक barrier सा develop होगा तो वहाँ पर body अपना blood pressure increase करने की कोशिश करेगी to wash out that barrier. But in that case the patient will complain of the higher blood pressure and somehow the related complications जो भी blood vessel जो है वो involve होगी. अब यहाँ पर जो प्रोसेस है इसमें आप मुझे बताएं कि HDL का रोल क्या है, HDL ने क्या करना था. If it is happening in your blood vessel, ये सारा प्रोसेस अगर आपके ब्लड वेसल के अंदर होना शुरू हो गया कि आपका LDL ऑक्सीडाइज हुआ है और आपकी बॉडी ने वहां पर व्हाइट ब्लड सेल्स रिक्रूट किए हैं और व्हाइट ब्लड सेल्स लेकिन उस जगह को वॉश आउट नहीं कर सके बल्कि डैमेज इंक्रीज हो रहा है और बहुत सारा कोलेस्ट्रॉल जो है वो रिलीज होकर ब्लड वेसल को और ज्यादा डैमेज कर रहा है.
तो इस डैमेज को कंट्रोल करने के लिए व्हाट इज द रोल ऑफ एचडीएल? Ma'am, it actually picks up the cholesterol from dying cells and transfer it back to the liver. यस, सो एचडीएल हैड टू डू दैट रोल, ठीक है, एचडीएल का मकसद था, और एचडीएल को अल्लाह ताला ने इसीलिए बनाया है हमारी बॉडी में, बिकॉज दिस इज प्लेइंग रिवर्स कोलेस्ट्रॉल pathway, and it is collecting all the cholesterol from there and bringing it back to the liver, and to some extent it is actually doing that. अगर HDL ये काम ना कर रहा हो तो हमारी तो सारी blood vessels damage हो जाएं. This is a continuous process which is happening, and that's why we keep on living a very healthy normal lifestyle, normal life, even if we have a very bad lifestyle. अगर आप बहुत sedentary lifestyle के भी आदी हैं, आपका कैफीन और smoking intake भी बहुत ज्यादा है, ऐसा तो नहीं होता कि अगले साल ही आपकी डेथ हो जाती है. You keep on living your life, you keep on having a normal life, but the damage keep on developing because everything has its own limits. HDL की भी अपनी एक लिमिट है. HDL अपनी उस लिमिट के अंदर रहते हुए ही जो है वो डैमेज को हील करने की कोशिश कर सकता है, कोलेस्ट्रॉल को कलेक्ट कर सकता है and bring it back to the liver. But if you keep on insulting your body and you keep on having bad lifestyle and bad dietary habits, that will definitely contribute to the damage and you will have to pay the price. What actually happens when this all damage has been initiated and this damage keep on progressing, so the HDL is also altered. अब यहाँ पर जो फंक्शंस हैं HDL के, दे आर ऑल्टर्ड HDL. जो हमने पीछे स्लाइड्स में पढ़ा था, दैट वाज द नॉर्मल HDL, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, और उसके नॉर्मल फंक्शंस लिखे हुए थे. अब यहाँ पर ऑल्टर्ड का लफ्ज जो लिखा हुआ है, ये आपको ये मतलब दे रहा है कि जब आपके जिस्म के अंदर कोई मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स इनिशिएट होता है, तो आपके जिस्म की जो अपनी प्रोटीन्स होती हैं वो भी आपके अगेंस्ट काम करना शुरू कर देती हैं, उनका फंक्शन चेंज हो जाता है. एंड हाउ दैट फंक्शन इज चेंजिंग, उसका जो बहुत माइन्यूट अमाउंट ऑफ डिटेल थी वो मैंने यहाँ पर ऐड की है, क्योंकि ये बहुत एक्सटेंसिव और बहुत डिटेल्ड प्रोसेस है. अगर आप इसको पढ़ना चाहें खुद तो you are welcome, you can read that, but I just wanted to keep it as simple as possible, but I wanted to give you an overview कि basically होता क्या है. तो इसलिए कोशिश करें कि जो मैं बता रही हूँ उसको समझने की जरूर कोशिश करें कि basically altered HDL का मतलब क्या है. I would like to quickly go back to my slide of the normal HDL to revise that what is actually happening in normal HDL. यहाँ पर आपने देखा है कि ये लिखा हुआ है कि HDL जो है वो फैट को रिमूव करता है फ्रॉम द सेल्स एंड जहाँ कहीं भी जो है वो फैट मौजूद होती है या कोई सेल्स जो हैं वो अपनी फैट को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो HDL takes that and bringing it back to the liver. In the most abundant apoproteins are apoprotein A1 and apoprotein A2. These are the apoproteins which have different definite functions of the HDL. They determine the functions of the HDL. कि HDL को जो properties दी हुई हैं कि HDL transports the cholesterol back to the liver, ये वाली इसकी property किस वजह से है? Because it has apoprotein A1 and apoprotein A2. Now we come back to the altered HDL, and here you can see HDL particles acquire substantial amount of serum amyloid A. This is an acute phase reactant protein which substitute apoprotein A1. कि जो apoprotein A1 attached थी HDL के साथ, जिसकी वजह से HDL था, वो वाली एपोप्रोटीन जो है वो डिटैच हो जाती है और उसकी जगह पर एक एक्यूट फेज रिएक्टेंट प्रोटीन बॉडी के अंदर बनती है, सीरम एम्लॉइड ए. वो ब्लड के अंदर बहुत ज्यादा होती है, और सीरम एम्लॉइड ए प्रोटीन जो है ये उस वक्त बनती है जब आपकी बॉडी ये सेंस करती है कि आपका जिस्म जो है वो इन्फेक्शन में है. तो लिवर जो है वो सीरम एम्लॉइड ए प्रोटीन बनाकर ब्लड के अंदर भेजता है टू हेल्प बॉडी टू फाइट ऑफ दैट इन्फेक्शन. तो वो ब्लड के अंदर उसके लेवल्स इंक्रीज हो जाते हैं सीरम एम्लॉइड ए प्रोटीन के, और जब सीरम एम्लॉइड प्रोटीन ए जो है वो ब्लड के अंदर बढ़ती है तो वो ऑटोमेटिकली आकर HDL के साथ अटैच होना शुरू हो जाती है, और HDL की एपोप्रोटीन A1 जो है वो डिटैच होना शुरू हो जाती है. जो HDL
सीरम एमलॉइड ए को अपने साथ अटैच कर लेगा और एपोप्रोटीन A1 को डिटैच कर देगा, वो वाला HDL जो है वो ऑल्टर्ड HDL होगा. एंड दिस HDL will not actually help in the role of reverse transport of cholesterol. Instead, HDL will start supplying lipids to that damaged and inflamed tissue. जहां पर डैमेज हो रहा था, जहां पर से HDL ने लिपिड्स को वॉश आउट करना था, अब HDL वहीं पर लिपिड्स प्रोवाइड करना शुरू कर देता है. So this means that that damage will be exaggerated. वो डैमेज जो है वो और ज्यादा बढ़ेगा, और अब जो हमारा प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म था, वी हैव लॉस्ट दैट प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म एज वेल. क्योंकि आप लिवर को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते कि अब इन्फ्लेमेशन है तो तुम सीरम एमलॉइड ए प्रोटीन ना बनाओ. लिवर विल ऑटोमेटिकली प्रोड्यूस सीरम एमलॉइड ए, क्योंकि आपके जिस्म के अंदर इन्फेक्शन है, और इन्फेक्शन जो है वो उस डैमेज की वजह से है. अब जब तक आप उस डैमेज को ठीक नहीं करेंगे तो इन्फेक्शन बढ़ती रहेगी, और लिवर को ये मैसेज जाता रहेगा कि वो सीरम एमलॉइड ए प्रोड्यूस करे. सीरम एमलॉइड ए ब्लड के अंदर आती रहेगी, और वो जितना भी HDL हेल्दी लिवर बनाकर भेजेगा, जिसके साथ एपोप्रोटीन A1 अटैच होगी, ब्लड के अंदर जब वो आएगा तो वो सीरम एमलॉइड ए को अपने साथ अटैच कर लेगा और एपोप्रोटीन A1 को डिटैच कर देगा. और ये जो ऑल्टर्ड HDL होगा, इट विल कीप ऑन प्रोवाइडिंग लिपिड्स टू दैट डैमेज प्लेस. तो इस तरह से जो डैमेज है वो मुसलसल बढ़ता रहेगा, और इन्फ्लेमेशन मुसलसल बढ़ती रहेगी, और एक वाइवेशियस साइकिल जो है वो कंटिन्यू रहेगा. इस बात की समझ आई है आपको? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. This is the whole phenomena which is happening in all cardiovascular patients, and this has really need to be understood very correctly. अगर आपको समझ नहीं आई तो मैं दोबारा भी एक्सप्लेन करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन कोशिश करें कि इसे बिल्कुल सही सही समझें, आपके माइंड में कोई कंफ्यूजन ना रहे. मैम सिर्फ ये प्लीज बता दें, एमलॉइड ए जो है जी. वो कैसे उस पे, मतलब उसको इन्फेक्शन जो है वो इंक्रीज कर रहा है. No, serum amyloid A is not increasing the infection. This is a acute phase reactant protein, जो कि आपको पता होगा, we have two different types of proteins in the body. कुछ प्रोटीन्स हमारे जिस्म में सीरम प्रोटीन्स हैं, जो कि हम नॉर्मल कंडीशन में होते हैं तो वो नॉर्मल ब्लड के अंदर सर्कुलेट कर रही हैं. फॉर एग्जांपल सीरम एल्ब्यूमिन है, ठीक है, ट्रांसथायरेटिन है, ये प्रोटीन्स हैं जो नॉर्मल आपकी हेल्दी सिचुएशन में बॉडी के अंदर मौजूद हैं. इनको हम कहते हैं नेगेटिव एक्यूट फेज रिएक्टेंट प्रोटीन्स, कि ये जब आप किसी इन्फेक्शन में आते हैं तो इनके लेवल ड्रॉप हो जाते हैं, ठीक है. और जब आप इन्फेक्शन में होते हैं तो कुछ और प्रोटीन्स हैं जिनके लेवल्स हाई हो जाते हैं, तो उनको हम कहते हैं पॉजिटिव एक्यूट रिएक्टेंट प्रोटीन्स. लिवर ही बना रहा है, एल्ब्यूमिन को भी लिवर बना रहा है, सीरम एमलॉइड ए प्रोटीन को भी लिवर बना रहा है. जब आप हेल्दी स्टेट में हैं, फॉर एग्जांपल अभी हम अगर सब हेल्दी नॉर्मल स्टेज में बैठे हुए हैं, तो हम सब के जिस्म के अंदर एल्ब्यूमिन के एक नॉर्मल लेवल्स होंगे, लेकिन सीरम एमलॉइड ए जो है वो अपने लोएस्ट लेवल पर ब्लड के अंदर सर्कुलेट कर रही होगी. लेकिन अगर आपके जिस्म के अंदर कोई इन्फेक्शन स्टार्ट होती है, कोई डैमेज शुरू होता है, तो उस वक्त आपका जिस्म इस बात को सेंस करेगा कि आपके जिस्म के अंदर इन्फेक्शन इनिशिएट हो रही है, और लिवर को ये मैसेज जाएगा कि आप एक्यूट फेज रिएक्टेंट प्रोटीन ज्यादा बनाएं. तो जब लिवर एक्यूट फेज रिएक्टेंट प्रोटीन ज्यादा बनाता है तो जो नॉर्मल प्रोटीन्स होती हैं उनके लेवल डाउन हो जाते हैं. तो ऐसा बंदा जो इन्फेक्शन में होगा, उसके जिस्म के अंदर एल्ब्यूमिन के लेवल लो हो जाएंगे और सीरम एमलॉइड के लेवल हाई हो जाएंगे. तो सीरम एमलॉइड ए के जो लेवल्स जब हाई हो रहे हैं, वो जाकर HDL के साथ अटैच हो रही है, और वो HDL के फंक्शंस को चेंज कर देती है. जो HDL के नॉर्मल फंक्शंस हैं कि वो कोशिश कर रहा है कि वो लिपिड्स को रिमूव करता है वहां से, वहां पर वो HDL अपने जो है वो लिपिड्स जो है वो प्रोवाइड करना शुरू कर देता है. तो ये एक तरह का ऑटो इम्यून प्रॉब्लम है, जिसमें आपका अपना बॉडी का जो मैकेनिज्म है, जो कि प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म था, वो अब आपके अगेंस्ट काम करना शुरू कर देता है. Got it, ma'am. Thank you. Got it? Yes. So the symptoms क्या आ सकते हैं? अगर then the symptoms will depend upon the artery which is involved.
अगर आपकी पेरिफेरल आर्टरी जो है वो इन्वॉल्व हुई है तो आपको और तरह के सिम्टम्स मिलेंगे। अगर आपके हार्ट की आर्टरी जो है वो इन्वॉल्व हुई है तो आपको डिफरेंट सिम्टम्स मिलेंगे, और अगर आपके ब्रेन की आर्टरी इन्वॉल्व हुई है तो आपको डिफरेंट सिम्टम्स मिलेंगे। Interfering with the coronary circulation supplying the heart or cerebral circulation supplying the brain will end up in stroke, heart attack, various heart diseases, including congestive heart failure. Atheroma in arm or more often in leg arteries, which will produce decreased blood flow in the called periphery artery occlusive disease. इसी तरह से और भी बहुत सारी आर्टरीज इन्वॉल्व हो सकती हैं, और जैसे जैसे मेडिसिन जो है वो एडवांसमेंट की तरफ जा रही है, वी कुड एबल टू आइडेंटिफाई एंड डायग्नोज दीज पेशेंट्स वेरी करेक्टली। अब हम रेटिनल आर्टरीज को भी डायग्नोज कर लेते हैं कि रेटिना के अंदर जो आर्टरीज जा रही हैं उनके अंदर कोई एक्लूजन आई है और वहां पर डैमेज हो रहा है। वेर एवर द डैमेज इज, यूजली अगर आप अपने डॉक्टर के साथ अटैच रहते हैं और जल्दी से अपने पैरामीटर्स को मॉनिटर करते हैं, तो यू हैव द बेटर चांसेस टू गेट बेटर डायग्नोसिस एंड ऑल्सो मैनेजमेंट ऑफ योर डिजीज। But mostly the first sign should be hypertension, high blood pressure, क्योंकि जब ये डैमेज स्टार्ट होता है तो बॉडी उसको सेंस करते हुए उस जो भी रुकावट होती है या जो भी नैरोइंग ऑफ द आर्टरी होती है उसके अगेंस्ट जो है ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करती है। तो जो पहला साइन होता है वो हाई ब्लड प्रेशर होता है, और हाई ब्लड प्रेशर अगर किसी पेशेंट में रिपोर्ट होता है बार बार, तो इसका मतलब ये है कि यू नीड टू हैव द डिटेल्ड असेसमेंट of all the lipoproteins, कि आपके जिस्म के अंदर लिपोप्रोटीन्स के लेवल्स क्या हैं, and secondly all the vessels should be checked for the occlusions as well. This is the process of the simple atheroma development, which can be, you can see over here, can take really long time. यहाँ पर आपको नजर आ रही हैं टाइम स्केल कि दिस इज द फर्स्ट डेकेड, कि जो फर्स्ट ही डेकेड है उसमें आप इधर से दूसरी तरफ से देखें तो पहले इनिशियल लेजर है, हिस्टोलॉजी नॉर्मल है, मैक्रोफेजेस इन्फिल्ट्रेशन हो रही है, आइसोलेशन ऑफ द फोम सेल भी डेवलप हो रही है। यहाँ पर आकर आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी फैटी स्ट्रीक जो है वो बॉडी में डेवलप हो रही है ब्लड वेसल के अंदर, और ये वाला जो ब्लड वेसल की साइड है, बेड ऑफ द ब्लड वेसल, इट इज गेटिंग अपर, एंड यहाँ पर जो है वो अक्लूजन के जो चांसेस हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं। लेकिन दिस इज वेरी बिगिनिंग, तो पहला पूरा साल जो 10 साल है क्योंकि डेकेड है पूरा, तो फर्स्ट डेकेड जो है वो सिम्टम फ्री आप रह सकते हैं कि आपके जिस्म के अंदर मे बी जो डैमेज है वो स्टार्ट हो चुका है, बट यू हैव नो साइंस एंड सिम्टम्स एंड यू आर हैविंग अ नॉर्मल लाइफ, जिसमें आप जो है वो अपना जो भी फॉल्टी प्रैक्टिसेस हैं उनको कंटिन्यू रखते हैं, एंड यू कीप ऑन टेलिंग एवरीवन कि मैं स्मोकिंग भी करता हूँ लेकिन देखिए मुझे तो कुछ भी नहीं होता, या मैं कोक्स भी बहुत ज्यादा पीती हूँ लेकिन देखिए मुझे कुछ भी नहीं होता। एंड यू हैव सीन मेनी पेशेंट्स लाइक दैट जो डिनाई कर रहे होते हैं कि देख लें कि मैं जो कुछ भी कर रही हूँ अपनी लाइफस्टाइल में, इट इज नॉट इफेक्टिंग माई हेल्थ। एंड आप यहाँ देख सकते हैं कि दिस इज क्लिनिकली साइलेंट स्टेज ऑफ द डिजीज। इवन इन द सेकंड डेकेड, हाफ ऑफ द सेकंड डेकेड, यानी कि 15 साल आपकी जो बीमारी है वो क्लिनिकली साइलेंट रह सकती है। लेकिन 15 साल पहले से अगर आपको बीमारी शुरू हो चुकी है और 15 साल का आपने जो लाइफस्टाइल अपना जो है वो फॉल्टी रखा है, तो देन यू विल हैव टू पे द प्राइस। उसके बाद वाले जो टाइम है, नेक्स्ट 15 years, you will already be starting with the symptoms and maybe you will need to start with the medication, but and there might be chances to prevent or prolong this situation, or you might end up on some accidental consequences. उसके बाद आपके पास इंटरमीडिएट लेजन आ गया है
where you have intracellular lipid accumulation and small extracellular lipid pools, and then you have a throma development. यहाँ पर आपके पास जो है वो already blood का जो flow है, you can see that is narrowed, और यहाँ पर जो डेफिनेटली जो है वो ब्लड प्रेशर जो है वो चेंज होना शुरू हो जाएगा. आई थिंक इट शुड बी स्टार्टेड फ्रॉम द इंटरमीडिएट लेजन. यहाँ पर भी आपको ब्लड प्रेशर के अंदर चेंजेस नजर आएंगी इन द थर्ड डेकेड, यानी कि व्हेन यू आर इन योर 30th ईयर ऑफ डैमेज, कि आपका डैमेज स्टार्ट पहले से स्टार्ट हो चुका था, बट यू हैव एंडेड अप ऑन दिस टाइम पीरियड. और अब जो बच्चे या स्टूडेंट्स या यंगर जनरेशन अपनी 30s में जो है वो ब्लड प्रेशर और हार्ट वेसल्स की नैरोइंग रिपोर्ट कर रही है, क्योंकि बहुत सारे कार्डियोवैस्कुलर डॉक्टर्स ऐसे हैं, स्पेशलिस्ट, जो ये बता रहे हैं कि हमारे पास जो पेशेंट्स हैं वो अपने 30 years ऑफ एज में कॉम्प्लिकेशंस लेकर आ रहे हैं. तो इट मीन्स के उनका जो डैमेज है वो बहुत अर्ली एज में स्टार्ट हो गया था. और अर्ली एज में डैमेज स्टार्ट होने की रीजंस जो हैं डेफिनेटली वो लाइफस्टाइल से रिलेट करती हैं, वो डाइटरी पैटर्न से रिलेट करती हैं, और उन चॉइसेस से रिलेट करती हैं जो कि हम फूड्स में बच्चों को ऑफर करते हैं. तो यहाँ पर आप देख लें कि अगर आपको 40 years की एज में फर्स्ट टाइम डैमेज स्टार्ट हुआ है तो आप सेफ साइड पर हैं, क्योंकि 40 साल में आपको फर्स्ट लेजन स्टार्ट होना शुरू हुआ है. तो इट विल टेक 30 years टू डेवलप द आर्टरीज इनटू दिस सिचुएशन. तो आप 70 साल के होंगे जब आपको पहली दफा ब्लड प्रेशर जो है वो हाई होगा. तो दैट इज फाइन. दैट एक्चुअली आपको पता है कि जब आप 70 साल की हैं तो आपका ब्लड प्रेशर ऑलरेडी नेचुरली ड्रॉप होना शुरू हो जाता है. तो ब्लड प्रेशर हाई होना जो है उस वक्त आपको इवन हेल्प कर, नॉट सेइंग इन सेंस कि आप इस तरह से अपनी लाइफ को प्लान करें 40 साल की उम्र में आप फॉल्टी हैबिट्स शुरू कर दें कि 70 साल की उम्र तक मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो जाए. बट द थिंग इज दैट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि डैमेज का इनिशिएट होना कितना इंपॉर्टेंट है, कि वो किस एज में इनिशिएट हो रहा है. अगर वो अर्ली एज में शुरू होगा, फॉर एग्जांपल 5 years की एज में आपकी ब्लड वेसल्स जो हैं वो उनके अंदर डैमेज स्टार्ट हो गया है, तो यू विल पे द प्राइस और you will see the consequences in your 30s. But if you have lived your healthy life and you tried to have a nice lifestyle and healthy dietary habits, तो फिर ये होगा कि आपको जो डैमेज है वो later life में देखना पड़ेगा, when you are in your 70s or 80s. तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी उसकी वजह से. But otherwise, it will progress to the fibroatheuma. Here you can see it has more complicated situation and there is calcification as well, कि यहाँ पर आकर कैल्शियम के भी डिपॉजिट्स हो जाते हैं, और कैल्शियम डिपॉजिट्स के बाद ये हार्ड हो जाती है जगह, एंड देयर इज डैमेज ओवर हियर, क्योंकि यहाँ पर इट इज ब्रेकिंग डाउन, और देयर इज अ चांस ऑफ थ्रोम्बोसिस, और ब्लड वेसल की जो कंप्लीट ब्लॉकेज है उसके चांसेस हैं. और इन केस अगर यहाँ पर कंप्लीट ब्लॉकेज होगी तो उसके अल्टीमेट रिजल्ट्स में ये होगा, क्योंकि पीछे से ब्लड का प्रेशर तेजी से आएगा, तो देयर आर चांसेस ऑफ रप्चर. और अगर रप्चर होगा तो that would really lead to high complication and maybe the accidental death as well. So this is the sequence of progress of atherosclerosis. And what can we do for the prevention? Do we have enough time to talk about the prevention? I think not. To end up the lecture over here.